Hello everyone. In this video, we will start the integration by substitution method. So this is most important. Means most of the integration problems can be solved by method of substitution method, and in JEE mains and advanced they will always ask most of the time, means 99% question they will ask on uh, integration by substitution method. But the variety of questions over here in the method of substitution, correct, integration by substitution is uh, very large. Means when we go ओके, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में the difficulty level will raise, correct. So there are so many varieties of integration by substitution method. So this is very first lecture on integration by substitution method. So definitely we will do some little easier problems. Okay, थोड़े से easy level के problems हम ज़्यादा चेकआउट करेंगे, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज आती रहेगी, करेक्ट. सो हियर इज द फर्स्ट वन, द इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स डी एक्स. तो इसको हम कैसे करेंगे? यहाँ सब्सटीट्यूशन होगा ए की पावर रूट एक्स दैट इज इक्वल टू टी. सो दिस बिकम ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स, ओके, डिवाइडेड बाई इंटू log of a, then root x का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स एंड डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी. ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, करेक्ट. रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स डी एक्स. सो फ्रॉम हियर just simply I have to find out the dx by root x, correct, dx by root x, that will be 2, okay. Then what is divided by a की पावर रूट एक्स, करेक्ट, 2 ऊपर जाएगा और ये log x भी नीचे आ जाएगा. दिस इज log a dt. तो आई कैन राइट इट इज 2 बाई टी, ए की पावर रूट एक्स तो टी पुटअप किया है, इंटू का log a और ये dt, करेक्ट, क्लियर है. सो देयरफॉर दिस इंटीग्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू द टी dx बाई रूट एक्स. dx बाई रूट एक्स क्या लिखा है? 2 बाई टी, करेक्ट, इंटू log a and dt. So this is what? 2 by log a integration of dt. So this is 2, correct, 2 by log a into ka t. So this is 2 by log a. T is what? A की power root x and plus c. This is your answer. Got it? Correct. 2 into a की पावर में रूट एक्स by log a and of course plus c, the constant of integration. So what we did here, put a की पावर रूट एक्स equal to t. डेरिवेटिव a की पावर रूट एक्स log a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इंटू लॉग ए ना. ओके, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो डी एक्स बाई रूट एक्स मैंने निकाल लिया एंड इंटीग्रेशन डन, करेक्ट. ओके, कमिंग टू दी सेकेंड वन. सेकेंड वन इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का 2x बाई साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स का स्क्वायर डी एक्स. देखो यहाँ कॉस 2x से इधर साइन 2x बन जाए तो दैट इज मच बेटर, करेक्ट. तो साइन 2x तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पे, कॉस 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x एंड दैट इज डी एक्स. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज साइन 2x. तो पुट साइन 2x या फिर 1 प्लस साइन 2x, डायरेक्टली 1 प्लस साइन 2x इक्वल टू टी. तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या? कॉस 2x इंटू का 2x का डेरिवेटिव 2 dx, दैट इज इक्वल टू dt. तो मुझे चाहिए cos 2x और dx, करेक्ट, वो हो जाएगा हाफ dt. सो दिस इज व्हाट, हाफ dt बाई, ये पूरा मैंने t पुटअप किया है. सो दिस इज हाफ log of t, दिस इज हाफ log of 1 प्लस
sin 2x plus c. This is your answer, correct? Again I can write 1 plus sin 2x equal to half log of sin x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वेयर प्लस का सी. ये स्क्वेयर सामने आ जाएगा तो इसको कैंसिल आउट कर देगा. तो सिंपली लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस का सी. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. गॉट इट? Now coming to this 3 and 4 problem. Okay, third and fourth problem. What is that? The integration of 10 into x की power 9. 10 into x की power 9 is derivative of this ना, x की power 10. And 10 की power x into log 10 is derivative of this ना, 10 की power x into log 10. Got it? So therefore put 10 की power x plus x की power 10 equal to t. What is that? Directly you can say that the derivative of this one is this one. To directly answer you can write down. Okay, but let's do with the process. So this is what 10 की power x into log of 10 plus 10 into x की power 9, correct, dx equal to dt. So this integration becomes dt by t, and that is equal to log of t. And this is log of, what is that, 10 की power x plus x की power 10 plus का c. As you can see that this is f dash x, correct, and this is fx. This is what, f dash x, and this is what, fx. So therefore the integration directly you can come to the log of fx, correct, log of fx, that is log of 10 की power x plus x की power 10 mod में तो रहेगा ही, and of course plus का c, the constant of integration. Got it? Correct? Okay. Now coming to the fourth problem. Now fourth problem is, fourth one is integration of dx upon x into log x into log of log x. Here also it is very easy to identify what to put. We have to put log of log x st, so that 1 upon log x, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, चेन रूल से, करेक्ट, dt. So dx upon x log x is whole dt. So this is what, dt upon t. This is simply log of t, that is log of, correct, log of, correct, log of x, and of course plus का c, correct. This is your answer. क्लियर है? ओके, फिफ्थ और सिक्स प्रॉब्लम को चेकआउट करते हैं. लेट्स सी दिस प्रॉब्लम नाउ. इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर में पूरा है ये, एक्स प्लस टेन इनवर्स ए की पावर एक्स. तो सबसे पहले लॉज ऑफ इंटीग्रेशन से, लॉज ऑफ इंडाइसिस से आई कैन राइट दिस इज ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर में टेन इनवर्स ऑफ ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए की पावर 2x. सी tan इनवर्स ऑफ ए एक्स की अगर डेरिवेटिव करूँगा तो ये 1 प्लस ए की पावर 2x आ जाएगा. सो देयरफॉर वी हैव टू सब्स्टिट्यूट क्या, tan इनवर्स ए की पावर x, tan इनवर्स ए की पावर x इक्वल टू टी. सो दैट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब ए की पावर 2x, और ए की पावर x का फिर से चेन रूल से डेरिवेटिव होगा, तो ए की पावर x इंटू लॉग ऑफ ए और डी एक्स, दैट इज इक्वल टू डी टी. अब आप देखेंगे ये ए की पावर x और ये डी एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के ये और ये पूरा, करेक्ट, ए की पावर x बाई 1 प्लस ए की पावर 2x डी एक्स विल बी डी टी बाई लॉग ए, करेक्ट. सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई लॉग ए, और हमने इसको क्या पुटअप किया था, टेन इनवर्स मतलब ए की पावर टी. तो ये 1 अपॉन लॉग ए बाहर आ जाएगा, तो व्हाट इज दैट, ए की पावर टी का डी टी,
इंटीग्रेशन ये पता है मुझे, दिस इज व्हाट 1/log ऑफ ए की पावर टी का इंटीग्रेशन ए की पावर टी डिवाइडेड बाई log ऑफ ए, सो दिस इज 1/log ए का स्क्वायर एंड ए की पावर में टी इज व्हाट tan इनवर्स ऑफ ए की पावर एक्स एंड आपको प्लस सी, दैट विल बी योर आंसर। गॉट इट? क्लियर है? तो यहाँ पे 1/log ए बाहर आ जाएगा, तो फिर से ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ही तो है, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई log ए, करेक्ट है? टी को वापस रिप्लेस कर दो। ओके 6 में आते हैं, 6 वाला क्वेश्चन। सिक्स वाला देखो, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटीग्रेशन ऑफ 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर एक्स इंटू 5 की पावर 5 की पावर एक्स इंटू 5 की पावर एक्स डी एक्स। तो इस पूरे वाले को ना, इस पूरे को टी पुटअप कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, पुट 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर एक्स इक्वल टू टी। तो ये तो ए की पावर एक्स की वेराइटी का डेरिवेटिव हो जाएगा। ए की पावर एक्स का वेराइटी का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए होता है, करेक्ट? तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर एक्स, करेक्ट, इंटू लॉग ऑफ 5, ये होगा। लेकिन अब यहाँ पे इसमें भी तो चेन रूल लगेगा, तो सिमिलरली 5 की पावर 5 की पावर एक्स फिर से लॉग ऑफ 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी तो चेन रूल लगेगा, करेक्ट? फिर से क्या हो जाएगा, 5 की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ 5 और इस पूरे का डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। ओवरऑल आपके पास में क्या बचा, आपके पास में ये 5 की पावर 5 की पावर 5 का एक्स इंटू 5 की पावर 5 ए इंटू 5 की पावर एक्स पूरा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन में, अगर मैं बात करूँ तो लॉग ऑफ 5 इसका पूरे का क्यूब आ गया, यानी ये पूरा ही एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया, पूरा ही एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया कहीं में इसमें, करेक्ट है? तो फाइनली ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया डी टी बाई लॉग ऑफ 5 इसकी पावर 3, तो 1/log ऑफ 5 इसकी पावर 3 और सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, 1/log ऑफ 5 इसकी पावर 3 इंटू टी और प्लस का सी, तो 1/log ऑफ 5 इसकी पावर 3 और टी को वापस रख दो, व्हाट इज टी? टी इज 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर एक्स एंड ऑफकोर्स प्लस का सी, गॉट इट? ठीक है, तो इस पूरे को पुट किया मैंने, तो ये पूरा ही एक्सप्रेशन डी टी बाई लॉग ऑफ 5 टू द पावर 3 इसमें कन्वर्ट हो गया। लॉग ऑफ 5 टू द पावर 3 ये कॉन्स्टेंट निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी होता है, करेक्ट? वापस टी को रख दो, खत्म, करेक्ट? 7 और 8 क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जो अलजेब्रा में जो भी वेराइटी, जो भी फंक्शंस हमने पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री में जो भी फंक्शंस पढ़े, वो सब उठकर यहाँ इंटीग्रेशन में आते हैं, और वो जो बेसिक नॉलेज हमने वहाँ गेन किया था उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। अब ये देखो एक्स की पावर एक्स वाले वेराइटी में आते हैं, सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एक्स है, तो पहले तो यही वाली अलजेब्रा आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो दिस इज व्हाट, तो दिस इज व्हाट एक्स की पावर में एक्स इंटू एक्स हो जाएगा ना, एक्स इंटू एक्स, करेक्ट? पावर गेट मल्टीप्लाइड, करेक्ट है क्या? तो दिस इज 2x इंटू लॉग एक्स प्लस का एक्स का डी एक्स, तो इनफैक्ट ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, करेक्ट है? ये हो जाएगा 2x लॉग एक्स प्लस का एक्स का डी एक्स, करेक्ट? अब यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हम क्या करेंगे, पुट एक्स की पावर एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टी, ये हम सब्सटीट्यूट करते हैं। आई गया बात समझ में? अब यहाँ पे भी बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, अब यहाँ का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो आपको पहले लॉगरिथमिक लेना पड़ेगा। यहाँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करना है, इसमें अब आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको पहले लॉग लेना पड़ेगा, गॉट इट?
तो लॉग लिया तो एक्स स्क्वायर सामने आ जाएगा इंटू का लॉग एक्स, और इधर भी लॉग लिया तो लॉग ऑफ टी। अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा डिफ्रेंशिएशन में, करेक्ट है, गॉट इट। तो मैं इसमें यहाँ करता हूँ, प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ। तो पहले तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, गॉट इट, प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, करेक्ट, और इस पूरे का dx दैट इज इक्वल टू लॉग टी का क्या होगा 1/t का dt, करेक्ट। तो आप देखेंगे ये बनेगा x, दिस इज व्हाट x, और ये बनेगा 2x log x का dx, यही तो हमको चाहिए था, 2x इंटू लॉग एक्स, 2x इंटू लॉग एक्स प्लस का x dx दैट इज इक्वल टू dt बाई टी, गॉट इट। तो यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना, पुट करना पहले पता होना चाहिए आपको। पुट क्या किया, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर को टी पुटअप किया, लेकिन उसके बाद में हमने इसमें लॉगरिथम लिया, दोनों साइड में क्या किया, लॉगरिथम में वी हैव टेकन दी log to both side and after taking log we are differentiating, got it। So therefore this integration now converted, this whole thing is t and this is what dt by t, so this is the integration of dt and this is simply t, so finally your answer is x की power x square plus का c, got it। You can also write this as again same way x की power x plus का c, ठीक है। Okay, now coming to the similar question, similar variety of question, that is question number 8, correct। क्वेश्चन नंबर 8 इज सिमिलरली एक x की पावर x 1 प्लस का log x डिवाइडेड बाई x की पावर x प्लस का 1 dx। नाउ हाउ टू डू दैट, डेफिनेटली x की पावर x को हमको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, पुट x की पावर x इक्वल टू 2, बट आई कैन नॉट डिफ्रेंशिएट at this moment. After putting x to the power x equal to 2, I will not differentiate, rather I will take the log to both sides, to take log, taking log to both sides, correct। इस वेराइटी में x की पावर x की वेराइटी में पुट करने के बाद log लेना पड़ेगा, so this is x into log x and this is log of 2, now I can differentiate, so therefore यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1/x प्लस लॉग ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1, करेक्ट, ये पूरा dx, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/t एंड ऑफकोर्स dt। तो आपके पास में क्या आया, 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगी नहीं तो, सो 1 प्लस लॉग एक्स, करेक्ट, dx इज dt बाई टी, तो ये पूरा कन्वर्ट हो गया। तो अब आपका इंटीग्रेशन कैसा दिखेगा, इंटीग्रेशन आपका ऐसा बन रहा है, देखो कैसे, x की पावर x को तो आपने t पुटअप कर दिया, दिस इज t, 1 प्लस लॉग एक्स dx को आपने dt बाई टी पुटअप कर दिया, dt बाई टी, टी विल गेट कैंसल आउट, और x की पावर x प्लस 1, x की पावर x t है तो ये t प्लस 1 होगा, करेक्ट। तो फाइनली ये dt बाई t प्लस 1 होगा और इसका आंसर आएगा log ऑफ t प्लस 1 एंड ऑफकोर्स प्लस t, व्हाट इज t, रिप्लेस t x की पावर x प्लस का 1, करेक्ट, आफ्टर log में है तो मॉड में रखना पड़ेगा, एंड प्लस का c, दिस इज योर आंसर। तो आई होप दैट ये वेराइटी कैसी करनी है ये बात भी क्लियर है। नाउ कमिंग टू दी 9th एंड 10th डिफरेंट वेराइटी। सो अभी तक के आपको ये आइडिया आ गया है कि जैसे जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में आगे बढ़ते हैं, द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशंस बिकम्स रादर मतलब मोर डिफिकल्ट, करेक्ट, ओके। और अभी तो और आगे आगे जैसे जाएंगे आपको अलग अलग स्पेशल वेराइटीज़ आएगी, जैसे हमने अभी एक्स की पावर एक्स
का इंटीग्रेशंस का वैरायटी देखा, उसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद में लॉग लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस वन का dx। अब क्या करें, तो देखो ये तो ट्रांसफॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे कौन e की पावर x प्लस वन है, तो यहाँ पे भी e की पावर x प्लस वन को क्रिएट करेंगे, तो ये क्रिएट हो गया, तो यहाँ माइनस टू होना चाहिए। e की पावर x प्लस वन ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यूज़ किया, तो ये तो हो जाएगा वन का dx और माइनस टू अपॉन वन अपॉन e की पावर x प्लस वन का dx। यहाँ तक कि ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत इजीली आ गए। क्वेश्चन अभी भी बच गया कि सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। ये वन अपॉन एक्स तो नहीं है, वन अपॉन ई की पावर एक्स प्लस का वन है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अब आपको फिर से यहाँ पे ट्विस्ट है। वो क्या ट्विस्ट है उसको देखते हैं। देखो इसके इंटीग्रेशन के लिए आपको एक्स माइनस टू, अभी यहाँ से ना ई की पावर एक्स को कॉमन लो, तो ई की पावर एक्स को मैंने कॉमन है। ये टेकिंग कॉमन वेराइटी ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस में हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन आता है और इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन भी है, टेकिंग कॉमन वेराइटी। तो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, तो ये तो बन जाएगा वन और ये बनेगा ई की पावर माइनस एक्स। करेक्ट, कॉमन लिया, तो यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा वन, यहाँ बचेगा ई की पावर माइनस एक्स। अब देखो अगर e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो e की पावर माइनस एक्स ही आता है। करेक्ट है क्या, तो ये अब ये टेकिंग कॉमन वेराइटी का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन बाय टेकिंग कॉमन वेराइटी का क्वेश्चन है। माइंड इट, इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर लेना है क्योंकि वही वेराइटी सबसे ज़्यादा फेमस है जो एग्ज़ाम्स में आती है। करेक्ट, तो ये मैंने कॉमन लिया, इसको वापस कैसे लिखूँगा, देखो एक्स माइनस टू और ई की पावर एक्स माइनस एक्स को ऊपर ही रख दिया, तो ई की पावर एक्स को ऊपर दे दिया। ये करना पड़ेगा, इससे ये आसान हो जाता है, वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स का डी। तो दिस इज द इंटीग्रेशन बाय टेकिंग कॉमन वेराइटी। आगे आने वाला है एग्ज़ाम में भी वही आता है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। 100% श्योर वेराइटी होता है इंटीग्रेशन बाय टेकिंग कॉमन। करेक्ट, तो इसको बड़ा वेटेज देना, इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, आगे भी आने वाला है। इंटीग्रेशन बाय टेकिंग कॉमन है, नाउ आई कैन पुट हियर, पुट कर सकता हूँ मैं। करेक्ट है, तो यहाँ पे करता हूँ मैं पुट, इधर आ गए, यहाँ से इधर आ गए, गॉट इट। पुट वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी आ जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी आ जाएगा। करेक्ट, करेक्ट, गॉट इट। तो ओवरऑल आपके पास में जो आंसर आएगा वो एक्स माइनस के साथ में चलेगा, है ना। अभी मैं इसमें हूँ, ये माइनस टू भी रखना है, तो एक काम करते हैं, जगह क्रिएट करते हैं, स्पेस क्रिएट करते हैं। तो ये है ऐसे, पूरा यहाँ से लिखेंगे। करेक्ट, यहाँ पे लिखते हैं दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो दिस इज व्हाट एक्स माइनस टू इंटू माइनस डी टी बाई टी। कब, वैन वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स को मैंने टी पुटअप किया, सो माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स मेरा डी टी मिला था। करेक्ट है, तो ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स आपका माइनस डी टी हो जाएगा, ये माइनस माइनस इधर आ जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस का टू इंटू लॉग ऑफ टी। करेक्ट, सो दिस इज एक्स प्लस टू log of t, t is what, वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस का सी। ठीक है, करेक्ट। इसके सिंप्लीफिकेशन को आप और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ है जगह, हाँ, इसके सिंप्लीफिकेशन को आप टू प्लस लॉग ऑफ, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस वन अपॉन ई की पावर एक्स। करेक्ट, प्लस का सी। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं
आपका आंसर यहाँ तक पूछा है कि यहाँ तक पूछा है, वो डिपेंड करेगा आंसर्स के ऊपर। करेक्ट। इसको और भी मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरा सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकता है, यहाँ पे मैंने रूल लगा देना है लॉगरिथम का। करेक्ट है। तो ये ऐसा भी हो सकता है, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं x प्लस 2 लॉग ऑफ ई की पावर x प्लस 1 माइनस 2 लॉग ऑफ ई की पावर x। करेक्ट। x सामने आ जाएगा ना, x सामने आ जाएगा तो x प्लस 2 लॉग ऑफ ई की पावर x प्लस 1 माइनस का 2x, लॉग ही तो 1 हो गया एंड ऑफकोर्स प्लस c। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 लॉग ऑफ ई की पावर x प्लस 1 माइनस का x प्लस c, ऐसे भी लिख सकते हैं। करेक्ट है। तो आपका आंसर यहां तक पूछा है या आपका आंसर यहां तक पूछा है, क्योंकि यहां तक के अपन इंटीग्रेशन से आए और ये बाकी सारी चीजें सिंप्लीफिकेशन से आए। गॉट इट। करेक्ट है। ओके ठीक। तो अब हम आते हैं अपने 10th क्वेश्चन के ऊपर। अब ये सिमिलर क्वेश्चन ही है, सिमिलर वेराइटी। आपको ये बात समझ में आ गई कि इस प्रकार के वेराइटीज के क्वेश्चंस में हम कैसे करते हैं। करेक्ट। तो ये आ गया 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन है e की पावर x, e की पावर x बाई 2 प्लस 1 है। तो e की पावर x बाई 2 यहाँ न्यूमरेटर में क्रिएट करना पड़ेगा, कर दिया e की पावर x बाई 2। करेक्ट। e की पावर x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या बात समझ में आई क्या, e की पावर x बाई 2 प्लस 1 का dx। तो हमने पुट भी कर दिया, पुट e की पावर x बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू टी। सो देयरफॉर e की पावर x बाई 2 का डेरिवेटिव, अभी इसका डेरिवेटिव तो हाफ हो जाएगा, x बाई 2 का डेरिवेटिव हाफ, dx दैट इज इक्वल टू dt। तो मेरे को चाहिए e की पावर x बाई 2 dx इज 2 dt। करेक्ट। तो मेरा इंटीग्रेशन बन गया, मेरा इंटीग्रेशन क्या बना, इतना चीज़ तो 2 dt में कन्वर्ट हो गया। और e की पावर x बाई 2 को मैं यहाँ से t माइनस 1 लिखूंगा, तो दिस इज t माइनस 1, दिस इज 2 dt अपॉन में t, इसका इंटीग्रेशन हो ही जाएगा। करेक्ट है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt 1 माइनस 1 अपॉन टी। करेक्ट। का 2 dt, 2 बाहर आ गया, 1 माइनस 1 अपॉन टी का dt, दिस इज व्हाट 2t 2t 1 का इंटीग्रेशन माइनस 2 लॉग ऑफ टी एंड प्लस टी को रिप्लेस कर दो 2 e की पावर x बाई 2 माइनस का 1, 2 e की पावर x बाई 2 माइनस नहीं प्लस 1, प्लस का 1। करेक्ट। ये है t। ओके। माइनस 2 लॉग ऑफ e की पावर में x बाई 2 प्लस का 1 प्लस का c, दिस इज योर आंसर। अच्छा, मैंने प्लस 1 से कर दिया, यहाँ क्वेश्चन में लिखा था माइनस 1 से, कोई इश्यू नहीं, चलो इसको प्लस कर दो। 10th में मैंने प्लस 1 कर दिया, यहाँ पे प्लस 1। करेक्ट। अगर माइनस 1 होता तो यहाँ पे प्लस 1 की जगह माइनस 1 हो जाता, तो एक और क्वेश्चन आपके लिए एक्स्ट्रा हो गया। करेक्ट। ओवरऑल कॉन्सेप्ट बात समझ में आई क्या, e की पावर x बाई 2 क्रिएट करना था, e की पावर x में कर दिया मैंने, और ये डिफ्रेंशिएट किया, प्लस 1 को पुटअप किया। प्लस 1 का डेरिवेटिव में कोई रोल नहीं है, माइनस 1 का भी यहाँ पे रहता तो कोई रोल नहीं होता। तो ये क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, e की पावर x बाई 2 प्लस 1। आप इसको e की पावर x डिवाइडेड बाई e की पावर x बाई 2 माइनस 1 का भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। गॉट इट। ठीक है। अब कुछ छोटे से वेराइटी, सिंपल ऑलरेडी हम पहले से ही जान चुके हैं, पर उसको मैं बता देता हूँ। देखो ये 2 वेराइटी सब्स्टिट्यूशन मेथड से अब आप इजीली कर सकते हैं। पहला तो यही है आपका कि यहाँ पे एफ डैश एक्स है डिवाइडेड बाई एफ एक्स है और डी एक्स है, तो इसका आंसर क्या आता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस का सी। और दूसरा ये होता है एफ एक्स की पावर एन और यहाँ एफ डैश एक्स का डी एक्स है,
मतलब इसको टी पुटअप करेंगे तो ये पूरा एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टी की पावर एन हो जाएगा, मतलब टी की पावर एन प्लस वन, मतलब एफ एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस का सी। कॉन्सेप्ट क्लियर, एकदम सिंपल। इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे रहेंगे, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 5x इंटू का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो 10x को पुटअप करो तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, टी की पावर 5 आ जाएगा, डायरेक्टली 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस सी, यूर आंसर। करेक्ट है क्या? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का डी एक्स। अब आप देखेंगे कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो ये एफ डैश एक्स है, ये एफ एक्स है। फाइनली डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो, हो गया सब्स्टिट्यूशन मन में, कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स प्लस सी, खत्म बात। करेक्ट है, करेक्ट। तीसरा देखते हैं, जैसे मैंने लिया एक्स स्क्वेयर प्लस वन का होल स्क्वेयर इंटू 2x का डी एक्स। करेक्ट, तो देखो एक्स स्क्वेयर प्लस वन का डेरिवेटिव 2x आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ये एक्स स्क्वेयर प्लस वन की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस का सी। गॉट इट। एक क्वाड्रेटिक नीचे ले लो और क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव ऊपर ले लो। फोर्थ प्रॉब्लम में आ रहा हूँ, ये है क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वेयर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, इसका डेरिवेटिव कितना होता है 2ax प्लस का बी, इसका इंटीग्रेशन, इसका पूरा डेरिवेटिव ये है, फाइनली डायरेक्टली लॉग ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इस बार डी कर दिया। गॉट इट। अब एक लास्ट, इसमें एक लास्ट प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ, बहुत काम का प्रॉब्लम है, इसमें एक लास्ट प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ, बहुत काम का प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है इम्पोर्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का डी एक्स। इसको हम कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर वेराइटी में, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन। करेक्ट, तो यहां पर आप क्या करेंगे, क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का डी एक्स। तो डेफिनेटली एक इंटीग्रेशन तो ये बन जाएगा और दूसरा इंटीग्रेशन ये बनेगा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो डायरेक्ट हो गया tan इनवर्स ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अगर हाफ 2 से मल्टीप्लाइड और 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाइड और 2 से डिवाइड किया, तो अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो गया ना ऊपर वाला। करेक्ट, तो डायरेक्ट ही हो गया ये tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस का हाफ और लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस का सी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो मैंने क्या किया, इसके डेरिवेटिव को न्यूमरेटर में बनाने के लिए मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दिया, सो दैट इसका डेरिवेटिव ये बन गया। करेक्ट, तो डायरेक्टली आ गया अपना आंसर। सो देखा आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आगे आगे कुछ डिफिकल्ट वेराइटीज़ इसकी आएगी और फेमस वेराइटीज़ आएगी जो कि जेईई मेंस में पूछी जाती है। थैंक यू।